Good evening, folks. Sorry for that delay in the start. Let's get started. I welcome you all today, this evening, on the QuantSap event on Candlesticks, basically a YouTube session. So we shall be covering basics of Candlesticks, a bit flavor of technical indicators, thoda bahut technical indicators ke baare mein janenge. And then we will see certain option trades, how that can be positioned with these technical indicators, more on the positional angle. Shubhankar ne kafi kuch cover kiya hai ki bhai, you know, time and again he covers a lot of things on open interest, OIPCR, things like that. So this is time for us to cover some aspects of, you know, essentially candlesticks, some technical flavor as such, to understand how data can be looked at in a more systematic manner, in some sense. So I shall be sharing my screen with the presentation as such. So I hope you can see the presentation as of now, as it comes up on your screens. So let's get started. Basically, देखिए, candlesticks was a Japanese technique which was developed in the 18th century, and of course, along with the Japanese candlestick, a lot of you know, Western tools are used to gauge the trajectory of the market, or market का signal क्या है, क्या पहलू पे चल रहा है, उताव है, चढ़ाव है, क्या है, मतलब कैसे चल रहा है. That is the perspective. Trend क्या है, लोगों को जानने का है कि भाई ट्रेंड क्या है. So a lot of things are unraveled with the candlestick patterns, and a sequence of candlesticks, certain candlesticks. We will see what a candlestick means, and then for the benefit of the audience, I will go through certain patterns, and then we will see how it has evolved as such. So I hope we are on the right page. If you are able to see the presentation, please post in the chat box that you know, you are able to see the presentation. So I'll get a perspective. Yes, that you're able to see the needful. In the meantime, I move on. देखिए, दो तरह के दिन होते हैं. So if you take one candle as one particular day, और डे का चार्ट हम प्लॉट कर रहे हैं, पर डे का चार्ट, तो नजरिया ये है कि भाई अगर ओपन नीचे होता है प्राइस, और अगर ऊपर के बाजू जाता है, सो दैट इज तो एक स्पेक्ट्रम कवर कर रहा है, एक जोन कवर कर रहा है प्राइस. तो वही नजरिया है जो कैंडलस्टिक में देखा जाता है. सो यू सी द लेफ्ट हैंड साइड इज अ बुलिश कैंडल, द राइट हैंड साइड इज द बेरिश कैंडल. सो दिस शोज द टिपिकल बॉडी ऑफ द कैंडल एज सच. ओपन कहाँ है, क्लोज कहाँ है, high and low, where are they positioned as such. That is what you get a perspective. पर अपने को ये नहीं पता चलता, we don't come to know about this, is that high पहले गया था कि low पहले गया था. हमको मालूम है कि ओपनिंग यहाँ हुई थी, क्लोजिंग यहाँ हुई थी, हाई तकरीबन उसके ऊपर था और लो जो है थोड़ा नीचे था. बट पूरे गैमेट ऑफ थिंग्स में अपने को पता नहीं चलता कि हाई पहले बनाया था कि लो पहले बना के फिर क्लोजिंग की तरफ गया, हाई बनाया फिर क्लोजिंग किया. तो वो एक वीकनेस है कैंडलस्टिक का, जो पकड़ नहीं पाएंगे हम. अगर हमको इंट्राडे ट्रैजेक्टरी देखना है तो देन वी हैव टू ड्रिल डाउन टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. तो जनरली टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो डेली चार्ट, वीकली चार्ट देखते हैं भाई. मैक्रो वीकली चार्ट से एक सिस्टम मालूम पड़ता है कि भाई मैक्रोस कैसे चल रहा है.
या मंथली चार्ट देख लिया, मंथली चार्ट से नजरिया क्या है, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव वी आर गेटिंग, व्हाट इज द मैक्रोज वी आर गेटिंग। तो मैक्रो पर्सपेक्टिव से या लार्जर पर्सपेक्टिव से थिंग्स कैसे लग रहे हैं। उसके बाद वीकली और डेली चार्ट पर आते हैं लोग, एंड टेक्निकल एनालिस्ट, दैट्स हाउ दे ब्रेक इट डाउन कि भाई बैकड्रॉप जो है वो पॉजिटिव है, वीकली चार्ट जो है वो भी पॉजिटिव है, तो नजरिया ये है कि नेक्स्ट वीक का परफॉर्मेंस भी शायद पॉजिटिव रहे। तो फिर डेली चार्ट पर डेली ट्रेडिंग फॉर द वीक होराइजन के नजरिए से दिखा जाता है। सो दैट्स हाउ वी लुक एट इट फ्रॉम the overall gamut of things. I was just looking at the chat room and looking at basically how if you're able to see the presentation or not. So not many people have responded to that. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. This is a sample candlestick chart and नीचे के बाद जो volumes है. So this is a nifty daily chart which is available in QuantSap application. तो हम application भी use करेंगे. तो अगर आपको एप्लीकेशन साइन अप करना है तो साइन अप लिंक है. देयर इज अ साइन अप लिंक इन द YouTube description which is there in the description. So there is a sign up link and you can sign up for a 2-day free trial using the promo code YTUBE. तो आपको ये चार्ट्स वगैरह निफ्टी के ऑप्शन चार्ट्स, स्ट्रैटेजी आर्किटेक्ट, ट्रिगर्स, ट्रैप, बहुत से टूल्स है जो आपको एक पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेंगे. सो यू विल बी एबल टू सी दैट. तो ये है निफ्टी का स्टैंडर्ड चार्ट, डेली चार्ट. हर दिन देखिए नया स्टोरी है. सो देयर इज अ कैंडलस्टिक फॉर एवरी डे, राइट. और हमने देखा पिछले स्लाइड में कि भाई ओपन अगर नीचे है और क्लोज ऊपर है तो उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं. ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है तो उसको बेरिश कैंडल बोलते हैं, और रेड कलर है वो ग्रीन कलर है. सो दैट्स अ कन्वेंशन व्हिच वी हैव फॉलोड इवन इन दी चार्ट पैटर्न्स. और कैंडलस्टिक में जो है वो देखा जाता है. तो नजरिया एक तरह से सिंपल है कि जब सिस्टम तेजी में है, when things are in the upward trajectory, you will see a lot of interspersed bull or bear candles देखे जाएंगे. And you can beautifully apply Dow theory also to this. कि भाई higher tops, higher bottoms बन रहे हैं क्या? So that is a Dow theory, typical Dow theory कि higher tops, higher bottoms बन रहे हैं. कि lower tops, lower bottoms बन रहे हैं. तो वो देख के आपको मालूम पड़ेगा कि भाई trajectory जो है वो या तो upward है या downward है. So that's how it is as of now. देखिए, it's basically a war of bulls and bears. अगर हर समय हम देखें तो it's basically a battlefield out there, और bulls और bears जो है वो खींचातानी जो बोलते हैं हम, वो खेल रहे हैं. So there are times when bulls are powerful, there are times when bears are powerful. अगर बड़ा बॉडी कैंडल का बन रहा है and that is a bullish candle, so you see a bull supremacy. And अगर रेड कैंडल बन रहा है बड़ा वाला, तो अपने को मालूम है बेयर्स का सुप्रीमेसी है. तो बेयर्स आर कंट्रोलिंग द ट्रेडिंग एट दैट जंक्चर. प्राइस एक्शन जो है वो ये दिखा रहा है कि भाई देयर इज अ प्रेशर ऑन द लोअर साइड. सो देयर इज दैट्स हाउ इट इज. सो वो नजरिया देखना इंपॉर्टेंट है. द साइज ऑफ द कैंडल मैटर्स एंड द लोकेशन, पोजिशनिंग ऑल्सो मैटर्स. पर अगर साइज देखा जाए तो अगर लार्जर द साइज ऑफ द बुल कैंडल, तो हमको मालूम है कि भाई कि प्राइस एक्शन को खींच के लेके गए हैं, और अगर वॉल्यूम भी अच्छा है उस पर, तो ना जाहिर बात है कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड दैट पार्टिसिपेशन हैज लेड टू द प्राइस एक्शन मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप. ठीक है, तो वही है. तो आगे बढ़ते हैं हम. द स्मॉल साइज कैंडलस्टिक्स आल्सो, जहां पे नाइदर बुल नॉट बेयर कुड प्रूव देयर सुप्रीमेसी. मतलब थोड़ा बहुत हल्की फुल्की सी ऊंच नीच हुई, and there is a slight gain here, slight gain there. It's more of a consolidation kind of situation. Consolidation जैसा नजरिया है छोटा बॉडी कैंडल का, तो वो है. So we have come across a large body candle, small body candle, and
So now we'll typically look at the lower shadow, how it does. Lower shadow मतलब भाव कभी ना कभी नीचे था, राइट? लोअर शैडो मतलब नीचे के बाजू का जो स्टिक है, दैट इज लॉन्ग, दैट विक, जिसको हम विक बोलते हैं। तो कैंडल का विक जो नीचे के बाजू है वो काफी लॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि ओपन कहीं ना कहीं यहां हुआ था, कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिरावट हुई थी, और वो गिरावट से पूरा खींच के ऊपर लेके गए। तो मतलब बुल्स ने इम्प्रेस से कंपैक्ट किया। तो ये है लॉन्ग, मतलब कौन पावर में आ रहा है, दैट इज द सेंटिमेंट व्हिच यू कम टू नो फ्रॉम दिस कैंडलस्टिक पैटर्न एज सच। तो अगर लॉन्ग अपर शैडो देखें, इसमें क्या है कि भाई बेयर्स आर कम बैक, कि भाई कभी ना कभी भाव ऊपर था ड्यूरिंग द डे। अगर ये डेली कैंडल देखा जाए, कभी ना कभी, डोंट गो बाय द कलर ऑफ द कैंडल, द कलर ऑफ द कैंडल इज इंपॉर्टेंट, but positioning of these candles, the size of the candle, the shape of the candle, the shape of the wicks मतलब डंडी ऊपर की नीचे की, so that is there. How far the high is from the body of the candle, that's important. That's what is important. So in this case scenario, you see that the bears have made a comeback. तो क्या एक टाइम पर ऊपर हुआ करता था भाव, और वहां से पूरी गिरावट होकर नीचे के बाजू आई। So that's the long shadow candles which we talked about. और अभी देखिए कि भाई ये हमने कवरेज था कैंडल्स का, एंड द सिक्स्थ कैंडल व्हिच वी डिडंट कवर वाज समवेयर इन बिटवीन। तो भाई मुठभेड़ हुई दोनों में, भाई हाई भी बनाया, लो भी बनाया, लेकिन आके क्लोजिंग लगभग उधर गया। तो इट्स बेसिकली कंफ्यूज्ड मार्केट। ओके, तो ये 6 इंडिकेटर्स हैं। ऑफ कोर्स अभी मैं थोड़ा पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूंगा कि भाई पैटर्न्स जो है वो कैसे हैं। सो यू हैव द इवनिंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, एंड वो है। तो देखते हैं नजरिया इसका कि भाई कैसे चल रहा है। जैसा मैंने कहा, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, और उसका उल्लंघन हुआ, मतलब देयर इज अ वायलेशन ऑफ दैट इन दिस केस सिनेरियो। तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न जो है वो डायरेक्ट वायलेशन है, एंड देयर इज अ कंफर्मेशन ऑफ दैट। देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बनाया, ऊपर गया, द नेक्स्ट कैंडल द कंफर्मेशन इज कमिंग दैट ओके देयर इज अ बेरिश मूव। तो एक अपवर्ड ट्राइजेक्टरी में अच्छी खासी उछाल आने के बाद यू आर सीइंग अ बेरिश मूव ऑन द लोअर साइड। दैट्स टिपिकली इवनिंग स्टार। और इवनिंग स्टार जो है, इट इज बेसिकली इंडिकेट्स कि भाई मार्केट में अभी थोड़ी उथल पुथल होने वाली है, अभी थोड़ा चेंज ऑफ ट्राइजेक्टरी पॉसिबल। सिमिलरली मॉर्निंग स्टार, वो इवनिंग स्टार था, मॉर्निंग स्टार। ओके, मॉर्निंग स्टार में क्या है कि भाई गैप डाउन होगा, स्मॉल बॉडी कैंडल बनाएगा, मतलब कंफ्यूजन हुआ थोड़ा बहुत, एंड देन यू हैव समथिंग व्हिच इज रियली राइजिंग अप द नेक्स्ट कैंडल, मतलब दूसरे दिन द नेक्स्ट कैंडल राइजिंग अप एंड गोइंग थ्रू द मिडल ऑफ द bear candle which was formed 2 days ago. देख रहे हैं ना वो सिनेरियो। सिमिलरली सिमिलर पैटर्न्स है। मॉर्निंग डोजी स्टार ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वी कैन लुक एट दिस। पर इसको क्या है, इसको सिस्टम में लेना है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई इसको सिस्टम में लेना है, तो वो नजरिया आपको जानना है इसमें। So that's the idea. That's the perspective with which you have to play this market, in the sense कि भाई पैटर्न टू पैटर्न जो है, आपने को एक स्टडी करना है कि भाई साइकोलॉजिकल कैसा एम्बेड होता है उसके अंदर, साइकोलॉजी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हाउ इट गेट्स एम्बेडेड। तो देखिए गैप डाउन ओपनिंग था, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद अच्छा खासा ऊपर की उछाल हुई। सो यू सी इट वाज मेकिंग एक तरह से लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स, और फिर अचानक ऊपर गया, इसके हाई को के ऊपर क्लोजिंग आया, लगभग इसके मिड पॉइंट पर आया।
So that's the thing. It's violating that, and there is a possibility this will start a trend upward. Doji star, evening. So वो था evening star, and evening star with a doji. Doji candle मतलब small body candle, open equal to close. Okay, वो भी देखा जा सकता है. So you have the doji, and then you have basically a breakdown. There is that. Abhi shooting star. Again, that's another pattern which is seen in the markets, indicating कि भाई अगर ये this is the inverted hammer kind of pattern. अगर आप बोलोगे ये inverted hammer है, तो inverted hammer is in a bearish trend formed at the lower end. उसको inverted hammer बोलते हैं हम. अगर ऊपर के बाजू बनता है, मतलब in a upward trend, तो उसको हम shooting star बोलते हैं. We call it shooting star. Okay. So that's how it works both the ways. Bullish abandoned baby. तो मतलब ऐसा कुछ pattern बने तो like you can basically say that this is a rare pattern. These patterns will not occur एकदम ही systematically, ऐसा नहीं occur करेगा. We will see how to spot these patterns also. Bearish abandoned baby. Okay. तो देखा जाए तो that's how the scenario is evolving, that कि भाई हमको 2-3 candle जो है उसका pattern देखना है, and that's what forms a candlestick wholesome pattern. Doji, हमने doji star देखा, doji evening star, doji morning star, doji बोल रहे थे हम बार-बार. So we were talking about doji. So doji, what is doji? You have the upper and lower shadows which could vary, but then open and close are virtually equal. Open equal to close, यानी body एकदम छोटी है उसकी candle की. Okay. So doji conveys a sense of indecision, hence requires a confirmation in the next candlestick. तो वो है. Doji by themselves है ना, मतलब they don't signal a reversal. Reversal जो है वो buying pressure या selling pressure दूसरे बाजू से आता है, तो उससे हम doji कहते हैं. These are the patterns of doji actually, as such. Okay, so these are the variety of doji star patterns, gravestone doji, dragonfly doji, long leg doji. Again, memorizing all these patterns को एक system में आंख में आ जाना चाहिए. Like you should be able to see it regularly, and then afterwards, after some time, it will come naturally to you in the system. आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके नीचे का फ्लेवर याद करना है. That's the idea. ये रहा. अभी हम देखेंगे भाई bullish engulfing, वो doji हो गया. doji बना, उसके बाद या तो bear candle बना, एक breakdown हुआ. So like in the bullish trajectory you saw a doji form, and then you saw a red body candle form. So that is indicating कि भाई ऊपर जाके नीचे उतर रहा है. There is a possibility of a topish kind of scenario there. Let's see. Of course, याद रखिए 100% foolproof कुछ चीज नहीं रहती. Everything is associated with some amount of probability in it. So probability is important. Like you have to know कि भाई what are the odds, right? तो वो एक नजरिया है जो important है. This is a bullish engulfing, मतलब पूरा का पूरा खा गया bear candle को. That is what is this bullish engulfing pattern. Okay, bearish engulfing pattern. ये देखिए, ये रहा bearish engulfing pattern. Bullish harami. Bullish harami is the Japanese word for a pregnant woman actually. So that's what it is. So of course the connotation in Hindi is something different, right? So bullish harami is the pattern which is where the small body is within in a bear move, it's within that. So that's what is called a bullish harami. It need not necessarily be a bullish candle,
मतलब वो ओपन इक्वल टू ओपन और क्लोज जो है हायर होना चाहिए वो जरूरी नहीं है. कलर ऑफ द कैंडल इज नॉट इम्पोर्टेंट बट द शेप ऑफ द कैंडल इज इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाट इट इज. ये बेरिश हरामी हो गया. ओके. बुलिश पियर्सिंग एक तरह से बुलिश पियर्सिंग है कि भाई यू आर सीइंग the prices action is actually piercing through, so you're seeing the bullish power coming back after a series of bear candles. So that's how I read it. Sentimentally मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि भाई नीचे के बाजू की रुझान है और अचानक हमने देखा कि भाई अच्छा खासा बुल कैंडल बन रहा है जो मिड पॉइंट ऑफ द लार्ज बेयर कैंडल को खा जा रहा है, मतलब मिड पॉइंट तक खा जा रहा है. So that's bullish piercing actually. Dark cloud cover एक तरह से bearish connotation है bullish piercing का. Dark cloud cover मतलब every day is not a sunny day. तो वही है, मतलब हर दिन सूरज एकदम चमचमाता हुआ दिखे ऐसा नहीं है. So that is why this is a dark cloud cover. Okay. उसके बाद हैमर देखा हमने. हैमर इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे के बाजू का रुझान है एंड आई हैव पर्पसली कलर्ड इट इन बोथ द कलर्स कि भाई रेड हो बेरिश कैंडल हो या बुलिश कैंडल हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस इज the length of the wick should be 2/3, मतलब दुगना होना चाहिए. बॉडी से दुगना विक का लेंथ होना चाहिए. तो वो एक इम्पोर्टेंट पहलू है इसमें. एंड that's how you look at it from the hammer. हैमर का नजरिया वो है कि भाई उसके बाद जो कैंडल मिलता है उससे कंफर्मेशन होता है कि भाई ये बॉटम आउट होके उठ रहा है. दिस इज इन्वर्टेड हैमर. जैसे आपने शूटिंग स्टार देखा वैसे ये इन्वर्टेड हैमर है नीचे के बाजू, राइट. सो दैट्स हाउ दैट इज. हैंगिंग मैन. हैंगिंग मैन इज द हैमर ऑन द टॉप व्हिच इज अ हैंगिंग मैन. तो एक बहुत लोग बोलेंगे ये तो हैमर है भाई, बट लुक एट द ट्रेंड क्या है. हैमर जो है वो बेरिश ट्रेंड में आता है. Okay, and inverted hammer is also in the bearish trend. Shooting star and hanging man is on the opposite side. That is on the bullish side. Bullish trend रहा, उसके बाद reversal आने की संभावना है. So that's when the hanging man happens. See shooting star which we discussed about, right? अभी any doubts as of now before we move ahead? Please post it in the chat box. I'll be looking at it time to time. As of now, no questions I'm seeing in the chat room. It's rather a silent one. Yeah, so you see a bearish engulfing there, which is a pattern which I've shown in the Nifty from our concept chart. I lifted it up actually. और ये देखिए two bearish engulfing, like ये सीधा खा गया है इसको. Here also there is a bearish engulfing, and then you see the drop. So of course देखिए जैसा मैंने कहा है बहुत बार ऐसा बेरिश engulfing बनेगा. यहाँ पर बना था, उसके बाद फिर अलग कैंडल बना, बट टिपिकली डार्क क्लाउड कवर यहाँ बना एक तरह से. पर अपने को देखना है उसका पोजीशनिंग कैसा है, कहाँ पर है. द अदर एस्पेक्ट्स लाइक वेस्टर्न इंडिकेटर्स जो है, ऑसिलेटर जो है, या फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है क्या उधर, तो वो सारे पहलू देखने पड़ते हैं अपने को टू सी दैट any changes or any typical scenario as such. तो ये देखिए ये रहा बुलिश हरामी टाटा स्टील में. तो डार्क क्लाउड कवर एंड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. वो एक ट्वीजर बॉटम भी बना है एक तरह से,
वो भी देख सकते हैं आप, जहां पर बॉटम ऑलमोस्ट इक्वल रहे दोनों का और नजदीक नजदीक ईजर बॉटम. Again, Bank Nifty, we are seeing Morning Star, Dark Cloud cover, Hanging Man. So ये रहा Evening Star as such. वैसे तो बहुत से candlestick patterns है. There are several candlestick patterns and some will have some validity of about 60%, 70%. Some will have a validity of 50%. So there is a whole host of candlestick patterns. The idea is not there today. The idea is isko zehn mein lena hai. You know, we have to take it as a gist of things. As a gist. In your system, when you're looking at the chart, you have to understand that rather than just going by a gut feel and buying options, कि भाई तेजी लग रही है, bullish लग रहा है तो buy call, bearish लग रहा है तो buy put. That is not the way to actually go as a trader, as a data-driven trader. So when you look at the candlestick charts, when you look at different patterns which are formed, you get a better understanding that better understanding approach from a data-centric point of view. So that's the point. I hope that answers some of the questions which were posed earlier on by Pranesh Bhai and several others. Okay. So then a typical head and shoulder pattern, we will see that head and shoulder pattern in a moment from now. So, but that's the typical head and shoulder pattern. And you can gauge the target. Okay. So the target is approximately the distance from the neckline to the top of the head. That is, the two shoulders have to be interconnected. So you have these 2 points. These two are the important points. I'll just annotate them for a second. Just bear with me. This point and this point. These points have to be connected through a trend line, and that forms the neckline. And then you see a shoulder, head. So that's a kind of thing, right? Similarly, inverted head and shoulder. Okay. So you have a target there, which is again inverted. तो उसमें क्या नजरिया ये है कि भाई भाव ऊपर जाएगा neckline से. Now it is not so beautifully happening in the real life. You will have a possibly a trend line kind of scenario here. Trend line breach, and then probably some kind of a retracement, and then again move ahead, and then choppiness, some choppiness. So what I'm trying to say is that the patterns, though shown here, might sound simple. Arey, ye to simple lag raha hai. But it takes years of experience to gauge that. Yeah. Some people have asked time frame to judge a pattern. Basically, I look at the pattern and then I try looking at the trend line supports and the open interest in the options, because we are talking about option trading, right? So look at the open interest in the options. Second thing is look at RSIs of the world, and I will be looking at RSI. The third thing is you can look at Bollinger Bands also at times. So that's a question. I hope that answers your question, sir. This is a typical double top, very beautifully, drawn in some sense. Triple top pattern, right? So 3 peaks formed, and हर टाइम कोशिश किया उसको क्रॉस करने का, फिर ऊपर कोशिश किया फिर वापस आ गया, फिर कोशिश किया फिर ब्रेक डाउन कर दिया. So basically it's a channel breakdown, and the width of that channel is something which is again extrapolated to give you the target on the lower side. Okay, double bottom, and then the target on the upper side. That's the scenario. Each time the bottom is happening, and that's how. Now this is October 2021 head and shoulder, and you can see that how
the breakdown happened here, basically. So shoulder, head, shoulder, I've drawn the trend line, neckline, and then breakdown happens somewhere near the top. Okay. And then you see the breakdown. And you also see the prices have gone higher here. And you see the RSI, it has dipped lower. So it's giving you a signal that there is a possibility of prices to go lower, right? So that's the scenario. I'm just trying to put the two things together. कि भाई अपने को चौकन्ना होना पड़ता है यहाँ पर कि भाई कुछ ना कुछ खराब लग रहा है. And then of course the RSI rose up. So then it collapsed. So then that is there. Well, in the meantime, I'd like to invite you to the option symposium. You can this is option symposium 5.0 and it's going to be amazing, I'm telling you. I have myself been to each of the option symposiums which were held earlier on. You had international traders like Tom Sosnoff coming over and explaining option strategies. So a lot of learning, trust me, a lot of learning, I think, from all these experts out there. There are other industry experts also which will be coming. So it's going to be a large gathering. It's going to be on the 11th and 12th February. Bombay Stock Exchange is the iconic place where it's going to happen. And 10 plus option strategies to be discussed, 30 to 60 and more than 100 plus people gathering together, and basically discussing ideas related to option trading. So it's going to be the India's largest option conference. Of course, we have a sponsors also, which is listed: Alice Blue, Espresso, M-Stock, Paisa, and Riggy. So you can move on to the optionsymposium.com and read about what kind of approach is being followed. And trust me, it's going to be a learning thing for all of us. So here we are. So we discussed about some candlestick patterns, and there are more and more candlestick patterns. So I just put a slide over there which indicates more and more of candlestick patterns out there. Yeah. So the idea ये है कि भाई आपको हम कैसे आत्मनिर्भर ट्रेडर बनाएं. आइडिया ये नहीं है स्पून फीडिंग करना नहीं है. आइडिया ये है कि भाई हम इसमें से कैसा लर्न करें ताकि हम खुद जब ट्रेडिंग पर बैठे तो हमको स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं पड़े, हम खुद का नजरिया खुद बना सकें. राइट. So that's the idea, that is the perspective. तो देखिए इंडिकेटर्स जो है, like the technical indicators, moving averages है, exponential moving average है, you have the Bollinger Band. So we will be discussing about Bollinger Bands, RSI, MACD. So variety of them, some of them are volume and price based. देखिए essentially तो हर चीज indicators all are price based, right? Price और volume. So ये चीजें तो सिस्टम में आती हैं. बाकी ऑप्शंस के लिए और क्या चाहिए आपको? Time, volatility. So those things you have to get it from the other avenues. But price action जो है उसका स्टडी तो यहाँ से मिल सकता है ना अपने को. That's the idea. ये देखिए, beautiful. Prices going higher and you see the negative divergence. अभी इसमें मैं एक बारीकी बताऊंगा आपको. अब ये पॉइंट पर है, प्राइस यहाँ टच हुआ, वहां पर देखिए डोजी भी बना है, तो आप चौकन्ने हो गए कि भाई अब ठीक है, देखेंगे कल क्या होता है. You're not stepping in for a trade. You're not stepping in for a trade. नहीं. जब तक आपको ट्रिगर नहीं आए आपको ट्रेड नहीं लेना है. जबरदस्ती घुस के हर दिन अरे आज क्या लग रहा है, आज क्या लग रहा है, आज क्या लग रहा है, आज क्या लग रहा है. See, if you want to do intraday trading is a different story. If you want to do positional trading is different story. ठीक है, तो दोनों की कहानियां अलग अलग है. राइट. तो टू अंडरस्टैंड कि भाई नजरिया क्या है वो अपने को देखना है. और आप कौन सा चार्ट देख रहे हैं? डेली चार्ट. तो डेली चार्ट में अपने को क्या मिलेगा?
डेली एट द मोस्ट 2 days पर्सपेक्टिव मिलेगा या 3 days पर्सपेक्टिव मिलेगा। वीकली चार्ट देख के डेली चार्ट देखेंगे तो आपको कोई पहलू मिलेगा कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, राइट। सो हियर यू सी दैट, और आप आरएसआई देखते हैं कि भाई आरएसआई जो है वो ऊपर के बाजू में, राइट। वो डोजी बनता है तो थोड़ा फ्लैटन आउट होता है, रेड कैंडल बनता है तो थोड़ा झुकता है तो ट्रेड लोगे क्या इमीडिएटली? नहीं, उसको इवॉल्व होने दीजिए, उसको इवॉल्व होने दीजिए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर डाइवर्जेंस टू हैपन, राइट। क्योंकि क्या है कि कभी कभार क्या होता है, थोड़े झुकाव के बाद आरएसआई फिर से सांप की तरह उठ जाता है, एंड देन इट गिव्स यू अ मोमेंटम ऑन द हायर साइड। तो हमने को वो देखना है, आपने को स्पॉट करना है इन द राइट मैनर। Tools, see, a bad carpenter will blame his tools, right? तो टूल्स जो है वो सही है, आरएसआई, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, बोलिंगर बैंड, वो सब टूल्स सही है, तो कैसा यूज करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए, in this case there is a negative divergence and you clearly saw that collapse, right? So that's the perspective. तो ये देखिए, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस हुआ, prices went a lower bottom but RSI went a higher bottom, तो डाइवर्जेंस हो गया, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, अच्छा खासी तेजी हो गई बाद में। तो आप तेजी को अगर यहां पकड़ते ये ब्रेकआउट पर, फिर भी आप काफी कुछ पकड़ पाते हैं, राइट। एंड देयर आर अदर इंडिकेटर्स व्हिच यू वुड यूज, बोलिंगर बैंड या जो भी है, मूविंग एवरेजेस है कि भाई मूविंग एवरेज लगा के आप देख सकते थे कि भाई ये कैसा लग रहा है। बोलिंगर बैंड, ज्यादातर बोलिंगर बैंड्स में यूज करता हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन पहले मैं बताऊंगा बोलिंगर बैंड्स क्या है, ओके, बट उसके पहले मैं देखूंगा कि भाई क्वेश्चंस क्या आए हैं। ओके, चलो, तो बोलिंगर बैंड्स में हमें कंस्ट्रक्शन देखता हूँ, बेसिकली आई लुक एट कंस्ट्रक्शन। क्यों? फर्स्टली बोलिंगर बैंड का कंस्ट्रक्शन देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेन है कि भाई उसका जो है सेंटर में 20 डे मूविंग एवरेज है, या 20 पीरियड मूविंग एवरेज पकड़ के चलिए। ये डेली चार्ट हुआ तो 20 डे हुआ, मंथली चार्ट हुआ तो 20 मंथ्स हुआ, ओके। और बहुत लोगों का ये नजरिया है कि भाई अगर ये ऊपर गया तो वी विल बाय, नीचे गया तो वी विल सेल, नीचे के बॉर्डर पर टच हुआ तो भाई बाय करेंगे, ऊपर के बॉर्डर पर टच हुआ तो चलो सेल करेंगे, रिवर्स हो जाएगा वहां से। ये नजरिया गलत है। आरएसआई के लिए भी बहुत लोग ये बोलते हैं ओवरबॉट हो गया तो, ओवरबॉट हो गया तो ये है, ओवरसोल्ड हो गया तो ये है, ऐसा है। तो वो है, ओके। तो कंस्ट्रक्शन है basically moving average, 20 moving average, and then you have a standard deviation on the top which is 2 sigma and minus 2 sigma। और जब एक तरह से ये वोलेटिलिटी बैंड ही है कि भाई प्राइस इतने दूर चले गए कि भाई 2 सिग्मा को टच कर रहे हैं, तो नजरिया ओके ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट विल कम बैक अ लिटिल बिट, कूल ऑफ अ लिटिल बिट, पॉसिबिलिटी है, एश्योरेंस नहीं है। ट्रेड नहीं लेना है उस पर, ट्रेड कोई और बात पर लेना है। एक कंस्ट्रक्शन आया, तो ये आप ये देखिए कंस्ट्रक्शन, सो यू सी दिस, यू सी द बोलिंगर बैंड विथ, इतने दिनों के बाद ये लो टच किया है, यानी ये जो कंस्ट्रक्शन है काफी नैरो है। और ये कल का पॉइंट है, वी विल सी द चार्ट नाउ, वी विल सी द चार्ट नाउ। और दूसरा नजरिया ये है, there is a W bottom also somewhere, so I'll show you that, okay, but the construction is there। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, जनरली द पर्सपेक्टिव इज कि बैंड्स जो है वो बहुत नैरो हो गए हैं,
तो मतलब जो है वो इट्स काम बिफोर द स्टॉर्म। मतलब ये है कि भाई नजरिया ये है कि कामनेस जो है मार्केट में, मतलब जो ठंड बढ़ गई है मार्केट में, आंधी के आंधी के पहले की शांति, ये वो कह रहा है। द स्क्वीज ऑफ वोलेटिलिटी, और जनरली बैंड में रहता है, काफी देर तक रहता है या काफी कम देर रहेगा, दैट डिपेंड्स। बट द स्क्वीज बेसिकली मींस आंधी के पहले की शांति। So there is a trending move which could come up post that. How that will come up, कैसे आएगा वो देखेंगे हम। अभी लोगों का ये कहना है कि भाई मैं आज ही ट्रेड लेना है, आज ही ट्रेड लेना है। तो जैसा मैंने कहा, वेट फॉर ट्रिगर्स, ब्रेकडाउन के लिए वेट कीजिए तो आपको अच्छा मूव मिलेगा एंड कॉन्फिडेंस भी रहेगा। पर आप ब्रेकडाउन के लिए वेट नहीं करते या ब्रेकआउट के लिए वेट नहीं करते, पहले ही कर देते हैं सब कुछ, तो वो है राइट। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी हम थोड़े चार्ट्स देखेंगे। I hope everyone can see the screen which I am showing you. So देखिए, see this is the point where which I was trying to show कि भाई एक लो बना था, ओके, एंड यू सॉ सेकंड लो, और आरएसआई देखिए वो सेकंड लो पर, आरएसआई देखिए वो सेकंड लो पर, तो सेकंड लो पर आरएसआई जो है वो रफली फ्लैट है। प्राइसेस आर मेड अ लोअर लो बट देयर इज अ फ्लैट हिंज, और वहां पर आप परसेंटेज भी देखिए, डाइवर्जेंस है राइट। तो परसेंटेज बी में डाइवर्जेंस आया, और आपका विड्थ जो है, बोलिंगर बैंड विड्थ जो है, इट स्टार्टेड स्लोपिंग ऑन द लोअर साइड। तो नजरिया ये है कि भाई अभी जो एक्सपेंशन हुआ है बोलिंगर बैंड में, वो शायद ही थोड़ा कोलैप्स हो। अभी एक्सपेंशन क्यों हुआ था? गिरावट से हुआ था एक्सपेंशन, राइट, गिरावट से हुआ था, गिरावट से हुआ था। तो अभी जाहिर बात है कि भाई हम लोग अगर गिरावट से ये एक्सपेंशन देखें, I'm just seeing the questions, if any are coming here. ओके, उसके बाद उछाल देखी है आपने? तो ये देखिए डाइवर्जेंस आया है यहाँ पर, उसके बाद की उछाल देखिए। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, यहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके बाद एक्सपांशन हुआ,
एक्सपेंशन में हल्की फुल्की ट्रेंड देखी गई, फिर कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ। तो यू हैव टू लुक फॉर कंस्ट्रक्शन, लुक एट दिस कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। अभी का कंस्ट्रक्शन देखिए, क्या है कंस्ट्रक्शन? शांति के पहले की, आंधी के पहले की शांति। दिस कंस्ट्रक्शन कैन रिमेन फॉर सम टाइम। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज का आज ही तोड़ देगा, उसके लिए अपने को ट्रिगर चाहिए, और ट्रिगर है 17,800 के करीब का, या कुछ लोग बोलेंगे 17,700 का लेवल है। तो वो है कि भाई यू कैन सी दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट, कि भाई 17,700 का लेवल नीचे के बाजू, और ये देखिए 17,700 नीचे के बाजू का सपोर्ट नजरिया है कि भाई लगभग वो तोड़ता है तो देयर इज अ प्रेशर। अभी आप बोलेंगे कि मैं करूं क्या ये सब जानकर। देखिए जब आपको ट्रेंड मिलता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलता है, तो आप क्या करोगे? नेकलाइन ब्रीच करेगा तो जाहिर बात है कि आप you will wait for the trend line to get broken, and then price action on the higher side. So that's the idea, that's the perspective. Price action is going to be on the higher side, पर एक ही झटके में तो नहीं आने वाला। और मानो कल एक्सपायरी है, ये 2 दिन में एक्सपायरी है, तो क्या आप ऑप्शन बाय करोगे? जरूरी नहीं है। और ऑप्शन अगर बाय करना है तो आप नजदीक एक्सपायरी का क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप तो पोजिशनल डेटा देख रहे हो ना, यू आर सीइंग अ डेली डेटा, राइट? सो ऑन अ डेली चार्ट इफ यू आर सीइंग द डेटा, then the idea is that if it is an inverted head and shoulder, अपने को मालूम है कि भाई संभावना है ऊपर जाने की, लगभग टारगेट भी पता है, हम ओपन इंटरेस्ट का मैप भी देख सकते हैं, ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट जो हम देखते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, दिस इज अ मैप, कि भाई आपको पहलू मिलेगा कि भाई यू नो 2 फरवरी की, या फिर 23 फरवरी देखना है, 23 फरवरी का पोजिशनिंग देखिए, जैसे बहुत कुछ मालूम पड़ सकता है। सो यू गेट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर्सपेक्टिव फ्रॉम दिस ऑल्सो। और आपको मालूम है आपका इन्वर्टेड और हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या है, मानो, तो देन यू कैन गो इन फॉर अ full call spread in the next month rather than going in just for buying options. bull call spread कीजिए ना, ब्रेकआउट पे एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। पॉसिबली है कि भाई खाली कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, इतनी रैपिड मोमेंटम से प्राइसेस नहीं बढ़े, ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मंथ। अगर एक्सपायरी नजदीक है तो नेक्स्ट मंथ कर लीजिए कॉल ऑप्शन, एंड रेजिस्टेंस के उधर यू कैन सेल, वो स्ट्राइक का कॉल बेचिए। जो रेजिस्टेंस है, मानो रेजिस्टेंस यहाँ पर, अगर हम निफ्टी का उदाहरण ले, तो निफ्टी अगर 17,700 तोड़ती है और 17,500 आपका टारगेट है, तो आप 17,700 का पुट लॉन्ग कीजिए और 17,500 का पुट शॉर्ट कीजिए ना, बुल वो बेयर पुट स्प्रेड कीजिए ना, बेयर पुट स्प्रेड। वही नजरिया है, लाइक you have to be systematic in such things, not just randomly trading कि ऐसा है। See, I will repeat this Bollinger Band thing, कि भाई यहाँ पर गिरावट हुई तो हमने देखा कि भाई काफी अच्छी खासी परसेंटेज बी में भी ड्रॉप आया, फिर से गिरावट हुई या न्यू लो, परसेंटेज बी में न्यू लो नहीं है, राइट? सो यू आर सीइंग अ पुल बैक, and that is what you saw.
और उसी वो बोलिंगर बैंड का भी बैंड का विड्थ जो है उसको भी कोलैप्स होना है. तो लाइक यू नो how will it collapse? It will collapse when it's mean reverting. The general tendency is that कि और फटने की गुंजाइश नहीं है, थोड़ा अंदर आने की गुंजाइश है, तो प्राइसेस अंदर रखे बाजू घूमेंगे. दैट्स द आइडिया. ओके, तो ये रहा बोलिंगर बैंड्स का अपना नजरिया. Take trades only on a decisive confirmation. Determine approximate target for the script. Breakdown हो रहा है, breakout हो रहा है, कितना target है आपका. Prefer option spreads than to naked buying of options, especially if you are not doing it intraday, you are doing it positional. I would say bull call spread या bear put spread कीजिए तो better रहेगा. That too expiry काफी दूर है, तो वो नजरिए से कीजिए कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है, आपको एक लंबा चौड़ा टारगेट दिख रहा है काउंटर पर. दिस इज मोर पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे. देखिए हम इंट्राडे का आज बात नहीं कर रहे हैं. वो है, डू नॉट कट योर ट्रेड्स व्हेन व्हिच आर इन प्रॉफिट इन अ लॉस. मतलब ऐसा है कि भाई आप ट्रेड सेल करते रहिए सिस्टमैटिकली, ताकि आपका यू नो जो पोजीशन प्रॉफिट में है वो लॉस में नहीं कटना चाहिए. राइट, यूजिंग सूटेबल ट्रेल सेल या अलर्ट्स. एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पेशेंस क्या है. पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. नाउ एक चीज देख सकते हैं हम ऑप्टिमाइजर पर. तो ये टूल रहेगा जहां पर ऑप्टिमल टारगेट स्ट्राइक्स मिलेंगे आपको कि भाई कौन सा स्ट्राइक बाय करना है, कौन सा स्ट्राइक बेचना है, बुल कॉल स्प्रेड कैसे करना है, वो सब मालूम पड़ेगा आपको. मानो आपका स्टॉप लॉस है 18,000 और टारगेट 18,500 का है. मानो दिस इज एग्जांपल, यू हैव टू फीड इन दीस पॉइंट्स. मतलब आपको ये सिस्टम में डालना है. टारगेट डेट डालना है. मैं टारगेट डेट 21 फरवरी 23 समझ रहा हूँ. करंट प्राइस जो है वो 17,888 है. तो मेरा डायरेक्शन जो है वो बुलिश का है. एक विचारधारा है. आई एम नॉट सेइंग यही होने वाला है या क्या, एक विचारधारा है. तो ये विचारधारा के साथ हम करते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स. रिस्क टू कैपिटल रेशियो 50 और बाकी सब ठीक है. लिमिटेड रिस्क ही लेंगे. कैपिटल एंड रिस्क में हम कैपिटल है अपने पास मानो 10 लाख, और रिस्क जो है वो 10,000 का लेंगे. ओके, इसको अप्लाई कीजिए. ये रहा आपका नजरिया जो था कि भाई स्टॉप लॉस 18,000 होना चाहिए, टारगेट 18,500 होना चाहिए. कब तक टारगेट आएगा? 21 फरवरी तक आएगा. अभी हम कौन सा स्ट्रेटेजी कर सकते हैं इसमें? देखिए लॉन्ग कॉल की तरह रिस्क को रिवॉर्ड देखिए और बुल कॉल स्प्रेड का रिस्क को रिवॉर्ड देखिए. जाहिर बात है कि भाई बुल कॉल स्प्रेड करना बेटर है. राइट, सो यू लुक एट द बुल कॉल स्प्रेड. ये आपको देगा. इसको आप एक नजरिए से आर्किटेक्ट में भी खोल सकते हैं. सो यू कैन ओपन इट इन आर्किटेक्ट. सो देयर यू गो. एक्सपायरी का पे ऑफ क्या रहेगा, वो करंट पे ऑफ क्या लग रहा है वो, दैट इज देयर. पोजीशंस क्या रहेंगी वो रहेगा. 2 लॉट इसका, 2 लॉट उसका. 17,800 स्ट्राइक बाय करने को कह रहा है, 18,450 स्ट्राइक बोल रहा है बेचने के लिए. ओके, सो द सिस्टम ऑप्टिमाइजेस फॉर डिफरेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. और आपको ऑप्टिमाइजर के थ्रू मालूम पड़ रहा है कि भाई कौन सा स्ट्राइक बाय करने का, कौन सा स्ट्राइक. बट फोरकास्ट कहां से आया? आपने एक फोरकास्ट किया था ना कि 18,500 तक जाएगा, वो कहां से आया? that you have to evolve through technical analysis. You have to evolve through derivative data कि भाई ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, क्या कहाँ है, वो सब देखना है. You have to see all those pointers. Okay, so that's
I think that's pretty much it from my side as of now. Or for knowing more about this, please stay connected with us. I would say Option Symposium is going to be a gala event, and I would like to see you there. And you can visit the site optionsymposium.com. और आप एक नजर लगाइए. And there is, of course, to register for the event, you can do it through this URL. So that's how it is. Okay. So that's pretty much it from my side. Wish you happy trading and all the best. And happy Republic Day to everyone. Namaste, Jai Hind. See you.